cell is a group of the structure and function unit of life is called the cell. Tissue, tissue may so many cells met together that perform a special function that is called the tissue. Now, the tissue collectively form the organ. Different organ in the turns working together for a certain major activity forms an organ system. अब ये organ system बनाते हैं. Now, our human and the animals have the so many types of the organ system, so many organ system met together and form the और क्या बनाएगा जब organ system मिलेगा then that form the तुम लोग का तो आने जाने का प्रोसेस जो है ना इतना देर तक करते हो ना that form the organ so many organ system met together that form a human body or the plant body or with so many systems we have to study that is the digestive system, respiratory system, circulatory system, फिर है nervous system, excretory system, skeletal system and the reproductive system. ये सारा बहुत सारा सिस्टम है सब मिलके एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्मेशन करता है. हाँ फर्स्ट वन है इसमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है नाउ डाइजेशन अब फूड कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबस्टेंस वो सबस्टेंस को वो कंटेन करता है ऑल सबस्टेंसेस आर they need to be converted into the soluble particles. The process of breaking down or the conversion of the food into the fine and the soluble particle that is called the digestion. So digestion का है and the digestion starts from the mouth. Mouth is also the oral cavity. ये oral cavity है that contains teeth, tongue, salivary gland, etc. है ना? The process of digestion begins in the mouth. Mouth से ही शुरू हो गया. Alright, first organ is the inside the mouth that is the teeth. Sakshi, Sakshi, what is the problem? You are unmuted. Sakshi, क्या problem है बताओ? You are unmuted. बोलो. क्या क्या नहीं हो रहा है? हाँ क्या बोली लिख दो लिख दो लिख दो अनम्यूटेड ठीक है चलो इतना देर तक समाता रहना ज़्यादा है अब है आपका टिप इट कैट इज स्टार्स growing before we are born but they begin to appear from the gums at about the 6 months age है ना वो होता है तो उसका बनना तो रहता ही है लेकिन 6 मंथ के बाद वो सामने में दिखाई देता है now there are the two sets of it. First one is the milk teeth, and other one is the permanent teeth. The number of milk teeth is 20 that originate from the after the 6 months to the 5 to 6 years. And the permanent teeth, there are the total number of the permanent teeth is 32. 32 होगा वो हमेशा के लिए रहेगा वो दोबारा जब वो ब्लैकिंग डाउन करेगा तो फिर वो दैट कैन नॉट बी अगेन ओरिजिनेट. Now, the teeth are the hard substance that have the two parts, crown and root. क्राउन रहता है और उसमें रूट रहता है. ये रिविजन में है पहले भी पढ़ाया गया है तो आप जानते हो कि पेज नंबर 142 है. नाउ background because there are some labels are working for the development of the school that cannot be. ना बस हम उसको दबाया बैकग्राउंड साउंड अब तो नहीं ना है. हाँ. Now, two parts of the teeth are the crown and the root. Crown is the upper part that can be seen, and the root are that are inside the. Now, there are the how many types of teeth? Two types of teeth: canine, incisor, premolar, and molar. The permanent teeth, the total number is the 32. 16 in the upper jaw and the 16 in the lower jaw.
ठीक है, और all the four types of teeth are present in them. Other tongue. What is the tongue? Second part in the mouth present, that is the tongue. और tongue है तो tongue में क्या हमको क्या है? What is the tongue? It is the muscular organ present inside the mouth. Mouth में जो हमारा muscular organ है, that is called the ये that is called tongue. Tongue help us क्या उसका function? What is the function of the tongue? To know the taste for the of the food, that is the salty, bitter, sour, or the sweet. एंड सेकेंड इज इट हेल्प्स इन द स्वेलिंग ऑफ द फूड फूड को जब हम लोग खाते हैं तो क्या करता है वो स्वेल करने में हेल्प करता है थर्ड वन इज इन मिक्सिंग द फूड विद द saliva produced by the salivary gland saliva that are excreted in them or that are are using in the mixing of the food material और थर्ड लास्ट वन क्या है इन आवर स्पीच अगर टंग ना हो तो हम लोग उसको बोल भी ना पाएंगे स्पीच में भी हमारा हेल्प करता है फंक्शन एज ए डाइजेस्टिव ऑर्गन यस बाय द ठीक है नाउ birds have the how many types of taste buds salty sour that have the small birds are present that is called the taste bud by the help of that very taste bud we can check it the whether the food material is a salty sweet or the sour or the bitter ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है तो सैलिवरी ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड हाउ मेनी पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड आता three pairs salivary glands are of the three pairs में है or the fluid that are secreted in the salivary gland that is known as the saliva saliva नहीं रहेगा तो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है ठीक है मैम that helps that mix with the food digestion starts and that helps in the swelling of the food now next one is the food pipe food pipe when you swell the food that goes into the food pipe that very food pipe is also known as the oesophagus इसको लोग oesophagus भी कहते हैं the tube is about the 30 centimeter in the length connecting the and that connected the mouth to the stomach mouth से stomach में क्या जो हमारा distance है that is connected now और कुछ फेस प्रॉब्लम है stomach this pipe is the muscular organ contraction of its muscular is responsible for pushing the food down inside the stomach. वो हमारे हेल्प करता है फिर स्टमक क्या है व्हाट इज स्टमक the food reaches to the stomach from the food through the mouth to the food pipe to the stomach the food material reaches and the digestion starts वहाँ पे शुरू हो चुका है वो डाइजेशन कर रहा है ठीक है ना स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर पहले से ही बताया हुआ है रिविजन में आप थोड़ा सा फास्ट चलिए ताकि वो और भी जो कुछ छूटा हुआ है वो क्लियर होते चला जाए the food is churned and changed into a paste like substance in the stomach the food get mixed with the gastric juice से मिल जाएगा secreted by the gastric gland of the stomach now अब है आपका gastric gland juice is what गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड फूड के डाइजेशन में वो हेल्प करता है द फूड जनरली स्टे इन द स्टमक फॉर अबाउट 2 to 3 hours एकदम टाइम भी याद रखना वहाँ पे स्टमक के पास में कितना देर तक फूड रहता है वहाँ पे क्या होता है देयर इज अ फूड स्टे फॉर द 2 to 3 hours वो 3 घंटे के लिए रहेगा वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस निकला था उससे वो मिल गया मिल के वो डाइजेशन का काम कर रहा है ना we take the in the form of the food carbohydrate fat vitamins minerals that all are necessary to digest in them now अब है आपका लीवर एंड पैनक्रियाज नाम सुना है ना लीवर का पैनक्रियाज का भी है ना by which the digestive juice are secreted लीवर में भी बताया गया है which type of juice there these are the two associated glands which greatly help the process of digestion the liver is our body largest organ largest gland it is dark brown in the color and weight about the 1.5 that secrete bile juice pancreas secrete the pancreatic juice ये सारा कुछ बताया हुआ है किसके घर से आवाज आ रही है
किससे घर पे साउंड क्लियर हो रहा है, साउंड आ रहा है? साक्षी, साक्षी। नाउ अब है हमारा, याद रखना, लीवर कौन सा जूस सेक्रेट करता है? बाइल जूस। पैनक्रियाज कौन सा जूस सेक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। दैट बोथ ऑफ देम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। फैट को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ आफ्टर द लीवर एंड स्टमक के बाद क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टमक के बाद फूड मटेरियल कहाँ चला गया? आफ्टर द डाइजेशन, आफ्टर सम डाइजेशन। ना, अब कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अंडरलाइन किया था उस समय, पढ़ करवाए थे, कर लो। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम लोग को जो भी पूछेंगे तो तुम लोगों को क्या उससे बताना चाहिए? लिख के बताओगे। चलिए, इट इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, नियरली 3 centimeter in diameter and 7 meter in the length। ठीक है, बोथ दी जूस हेल्प इन द डाइजेशन। हर्षित गुप्ता कितने बार आता जाता है जी? The small intestine absorbs nutrients from the digestion, the food and they takes them to all the cells of our body. Through the blood capillaries, the food nutrients thus provide energy to all parts of the body. The food that remain undigested and unabsorbed then enter the large intestine. The function of a small intestine is what? बता चुके हैं, तुम लोग थोड़ा सा याद रखो कि क्या था बताया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड का जो मिनरल्स है, मटेरियल्स है, विटामिन है, दैट आर एब्जॉर्ब। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे जो भी हम लोग खाना खाए थे ना, क्या खाए थे? मान लो ब्रेड खाए थे, राइस खाए थे, कुछ भी घर में पसंद खाए थे, दैट आर ब्रोकन डाउन, दैट आर डाइजेस्टेड एंड दैट आर broken down in small pieces, digested by the digestive juice that are secreted by the stomach, liver, pancreas, जो जिससे भी हुआ। अब वो इतना soluble particle बन गया है, अब वो that very materials are absorbed by the wall of the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, क्या है? जियोल। नाउ ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल का क्या काम है? वो हमारे न्यूट्रिएंट्स का, फूड न्यूट्रिएंट्स का वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एकदम हमेशा के लिए याद रखो कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अभी भी बहुत अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड पार्ट और अनएब्जॉर्ब देन रिचेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब वहाँ पे वो उससे वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन, large, the lower end of the small intestine extends into the white tube-like structure called the large intestine. It is usually 1.5 meter long and 7 meter in diameter. ये सब कुछ पहले करवाया हुआ था, एक बार फिर से ऐसे समराइज करके सुन लो ताकि फिर से याद रहे, जिसका जो छूटा हुआ है वो फिर क्लियर हो जाए। Now, unlike the small intestine, the large intestine is the wider and shorter. The large intestine helps in the absorption of water from the undigested food. कितनी बार शिवम आएगा जाएगा? तुम लोग बार बार आते जाता ही रहता है। चलिए, unlike the small intestine, the large intestine is wider and shorter. कैसा होता है लार्ज इंटेस्टाइन? वाइडर रहेगा और शॉर्टर, छोटा है वो, थोड़ा चौड़ा है वो। The large intestine helps in the absorption of water from the undigested food, which is then pushed out as the waste। अब वहाँ पर जो वाटर भी था वो भी एब्जॉर्ब हो गया, और जितना भी मटेरियल जो बचा हुआ था वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया। अब फूड हमारा कहाँ पहुँच गया? दैट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल
जो भी था, extracted particles that are present in the anus. The undigested semi-solid waste product is eliminated from the body through an external organ called the anus. ठीक है, that is वो क्या था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है ना। Next is the respiratory system. Respiratory system, what is the function? What is called respiration? Respiration is the process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body. That process is called respiration. इसी को respiration कहते हैं कि और भी कुछ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा वो रिलीज्ड एंड विच गैस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। Nature have given the so many things, but in all of them, the oxygen gas that are very essential for the living thing, वो हमको होना ही चाहिए, otherwise in the few minutes our life can finished। तो ये हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन है, वो करने की जरूरत है ही नहीं, बॉडी को नेचर ने ऐसा बना के भेजा है कि वो अपने आप नेचर ने प्रोवाइड किया तो अपने ऑटोमेटिक फंक्शन। By the automatic function, we take the oxygen and release the carbon dioxide. तुरंत हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, इसको हमको करने की जरूरत नहीं है, वो मशीनरी चीज नहीं है, नेचर ने ही बना दिया है। तो बस आप खड़े रहिए, आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपके पूरे अंदर बॉडी में जाएगा, दैट विल अब्सॉर्ब द यूज्ड एंड देन रिलीज फ्रॉम द बॉडी एंड टोटल फंक्शन इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। बॉडी में गया, आवाज आ रही है ना? बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा था अभी। अगर प्रॉब्लम है तो फिर से बता देते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कहाँ से रिलीज आया, कहाँ से, ऑक्सीजन इज टेकन इन, बैकग्राउंड साउंड है, oxygen is taken in, carbon dioxide is released, that very process called the respiration। अगर रेस्पिरेशन थोड़ा देर ना हो, हम लोग ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग क्या होगा, हम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। तो नेचर ने हमें ऑटोमेटिक फंक्शन भी दिया है और हमारे इतना सारा एयर भी है, तो प्योरीफाई करके हमारा एटमॉस्फेयर में खूब सारा प्लांट लगाओ कि हम लोग को ऑक्सीजन मिले, हमारा पूरा फंक्शन कम्प्लीटली अच्छे से हो सके, बिकॉज विदाउट द रेस्पिरेशन वी कैन नॉट ब्रीथ। Now, during this process, there is a breakdown of the food that result in the release of energy. The respiration system in the human organ consists of the following organs. रेस्पिरेशन तो हुआ, हम लोगों ने ऑक्सीजन तो लिया, वो ऑक्सीजन क्या यूज हुआ, जो भी फूड मटेरियल हमारे सेल्स में गया था, पहुंचा था बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट आर that very food material are digested and released in the form of energy and carbon dioxide, और वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, रिलीज किया, एंड दैट प्रोड्यूसेस द एनर्जी दैट आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दैट वेरी एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सेवरल फंक्शन। वो हर काम को करने के लिए हमारी वो मदद कर रहा है। ठीक है, तो टोटल फंक्शन ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी कर रहा है, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। दैट प्रोसेस कॉल्ड द रेस्पिरेशन। सोच लो नेचर ने कितना हम लोग को अच्छे से बनाया है ना। तो नेचर को हम लोग को प्योरीफाई करके रखना, अच्छा रखना, ये दैट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। नाउ अब रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्गन दैट इज द नेजल कैविटी। नाक से शुरू हुआ, इन लोग को तो डेली करना ही, दिन भर में कितना कितना बार। तो नेजल कैविटी, एयर इंटर्स द नोज through the nasal cavity. As the air passes through the nasal cavity, it gets warmed up and also gets filtered out. Warm भी हो गया और filter out भी हो गया, filtered हो गया। The hair present in the nostril stops the dust and germs.
from entering the respiratory system. बाहर जो आजकल हम लोग मास्क लगा रहे हैं इससे बहुत ही हम लोग प्रोटेक्शन रह रहे हैं कि किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंटर ना करे, कोई डस्ट मटेरियल भी नहीं जाता है। अगर डस्ट मटेरियल चला गया किसी भी कारण से तो हम लोग को वो थोड़ा अनईजी फील होने लगता है ना। तो दीज आर प्रोटेक्टर्स। आफ्टर द नेजल कैविटी विच ऑर्गन? फेरिंग्स, है ना। सारा ऑर्गन का नाम पहले भी बताया हुआ है, डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, बनवाए भी हैं। आप अच्छे से उसको एक बार 10 मिनट में रिवीजन कर लोगे। फेरिंग्स इज व्हाट? The nasal cavity leads into an organ that is called pharynx. From the pharynx, air passes into a chamber called the larynx. Pharynx से वो किस में जाएगा? Larynx में. The larynx produces sound and is also called the voice box. What is called the voice box? Larynx. फेरिंग्स जहाँ एंड करता है वहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, एक चैम्बर बना हुआ है। दैट वेरी चैम्बर इज कॉल्ड द लैरिंग्स, और लैरिंग्स को वी आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। The opening of the pharynx into the larynx is guarded by a wall. That very wall is called epiglottis. दोनों के बीच में एक वल्व लगा रहता है ना, छोटा सा हम लोग का टंग की तरह। तो दैट इज कॉल्ड द epiglottis. क्या कहते थे? epiglottis। पहले भी तुम लोग याद कर लिया होगा ही। This wall closes thin opening when we take in the food. It keeps it open during the breathing. Breathing के समय में ये क्या होता है? अपने आप ये ओपन हो जाता है। Now windpipe. हाँ, windpipe। अब कहाँ गया? एपिग्लॉटिस से वो चला गया, दैट इज द विंड पाइप। विंड पाइप से ही तो जाएगा, ऐसे तो नहीं कि फुट पाइप से चला जाएगा। फुट पाइप में एयर जाएगा नहीं, एयर में फुट जाना नहीं चाहिए। विंड पाइप, द विंड पाइप इज a delicate muscular tube situated in front of the foot pipe. Ayush, so late you are. The windpipe is a delicate muscular tube situated in front of the food pipe. In the neck, it is about 12 centimeter in the length and 2.5 centimeter in diameter. The windpipe gets divided into two parts called the bronchi as it enters the lungs in the chest cavity. ठीक है, अब उसके बाद क्या है? लंग्स है। Now, the bronchi leads into the lungs, which are situated on either side of the chest cavity. Lungs contain a number of the air shafts and blood vessels. When the air enters the lungs, the blood vessels around the air shaft take in oxygen and give out carbon dioxide and the water. Oxygen is carried by the blood to the different part of the body. In return, the carbon dioxide and the water vapor from the blood enters the lungs and are thrown out from the nose. क्या होता है इसमें? लंग्स में फंक्शन क्या है? What is the function of the lungs? जो सैटेलाइट स्ट्रक्चर है वहीं पे जाके ये क्या करता है? बढ़ जाता है। The satellite structure that is present. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? एयर जब ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन है, ऐसा किसी अपने ब्लड के साथ में पूरा बॉडी में गया और मिल गया हर से किसी को बॉडी में आया, तो बॉडी से किसी को बॉडी में आया, तो ब्लड अब कहाँ जाएगा? वो ब्लड चले कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करेगा और वहाँ पे को करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या होता है, निकल जाता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ दी ब्रेन। नाउ अब है डायफ्राम। लंग्स में और हमारे स्टमक के बीच में एक डिपार्टमेंट होता है बांटने वाला, सेपरेट करने का। लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। चलिए और थोड़ा नजदीक लाना पड़ेगा, थोड़ा सा कभी कभी तो दूर होने से ना आवाज ही क्लियर नहीं होता है। चलो अब डायफ्राम क्या है, व्हाट इज द डायफ्राम? लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? राइट डाउन, राइट डाउन, इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है ना वॉइस में? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस का, वॉइस प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। lungs cannot move by themselves, अपने आप वो मूव नहीं करता है। it is the movement of the diaphragm and the muscles between the rib and the of the chest wall, chest wall के और the diaphragm and the muscle, it is the movement of the diaphragm and the muscles between the rib and the chest, chest wall और rib के बीच का जो ये मूवमेंट है उसी से वो अपना ऊपर नीचे होता रहता है। that causes the expansion and contraction of the lungs. That's the breathing takes place. Contraction होगा, expansion होगा, and that are committed. That are in this process the breathing takes place. Is any problem here? After that, circulatory system. ये सब पहले भी रिवीजन किया है, एक बार रिवीजन करो फिर क्वेश्चन आंसर लिखना। क्वेश्चन आंसर याद है सभी को इतना दूर तक का? चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी हम इसमें से पूछते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा लंबा है तो हम लोग पहले इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी जितना जो करवाए हैं उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुमसे, है ना? चलिए अब कोई हल्ला नहीं करेगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, और दो 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 करके सारा कुछ हम लोग रिविजन करेंगे। Yes, Kumar, you are so late now.